Hello everyone. So in this video, we are going to talk about Linux file permissions and ownerships. Okay, so first thing is that why is Linux permissions and ownerships important? Okay, this is because that Linux is a multi-user operating system, right? So there are a lot of users who are using the same operating system, same system. Okay, so in that case, so suppose I am one user and I create a file, but I do not want that any other user, any particular user should be able to execute or write that. Okay, so basically I do not want that anyone else should modify it. So for that purpose, we should have certain permissions that are limited to only me, right? So all these things we are going to look in this video. So the first thing is what is ownership? The ownership means that suppose you have a particular file, how different users can use that file, that means ownership. Okay. So there are three types of owners. The first one is the user. Okay. User means the owner or the creator of the file itself. So if I am creating any file, I will have all the user permissions related to it because I am the owner and the creator of the file. The second type of permission is the group permission. So suppose you're having 10 to 15 users associated with a single Linux operating system and you want to group them. So if I group five particular users differently, so if I give permission to that group, so all the users residing in that group will have the same permissions associated with it. Okay, so that is about the group. The third type of owners are the other user. So any user which is not part of any group and neither he is the owner of the file. So all the permissions related to others will be eligible to that particular user. So this is ownership in Linux. The next thing is permissions. So for a given file in Linux, we have three different kinds of permissions. The first one is the read permission, second one is the write permission, and the third one is the execute permission. तो अब रीड परमिशन क्या होता है कि सपोज यू हैव अ फाइल ओके उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा है बहुत सारा कंटेंट है बट इफ यू डू नॉट हैव रीड परमिशन यू कैन नॉट सी द कंटेंट ऑफ दैट फाइल so for seeing or viewing the content of the file, you should have the read permissions associated with that file. Okay. The second is the write permission. So suppose you have a file, you can view that, you can see it, but you find certain errors or some modifications that you want. So for that, you should be able to write in that file. Okay. So for that, you need to have the write permissions of that file. And the third one is the execute permission. Execute permission means that you have a file which is having commands written in it, okay, which in Linux we usually called it as a script. Okay, so you have a script and you want to run it, you want to execute it so that the commands can be run with their real meaning. Okay, with that, for that thing you should be having the execute permissions associated with that file. Okay, so I hope the permissions is clear and I hope the ownership is clear. So let's look at the command which is related to both of these terms. So let me go to the terminal. ओके सो दिस इज माय टर्मिनल. सो सबसे पहले क्या देख लेते हैं कि हमें पता कैसे चलता है कि बेसिकली हमारी डिफरेंट ओनर्स के पास कौन कौन सी परमिशंस है. तो उसके लिए मैंने ls कमांड जब मैंने आपको बताया होगा तो उस टाइम मैंने एक दिखाया था कि फर्स्ट कॉलम जब हम लॉन्ग लिस्टिंग करते हैं यूजिंग ls-l. So the first column which is present, this one is related to the permissions. तो अब इसके अंदर की डिटेल्स हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है. तो फॉर दिस लेट्स जस्ट पिक अ सिंगल फाइल. जैसे मैंने मान लो एक फाइल पिक कर ली ऑक फाइल, ठीक है, उसको लॉन्ग लिस्ट कर लिया. एंड यहाँ पे फर्स्ट डैश मीनिंग होता है डी. डी या फिर डैश हो सकता है. सो डी मीन्स डायरेक्टरी. अगर तो जो मैंने लिस्ट किया है दैट इज अ डायरेक्टरी, सो यहाँ पे हमारा डी लिखा होगा. जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो वीडियोस डायरेक्टरी थी, तो फर्स्ट हमारा फर्स्ट कॉलम में डी था. यहाँ पे डैश है बिकॉज दिस इज अ फाइल एंड नॉट अ डायरेक्टरी. इसके बाद जो नेक्स्ट थ्री कॉलम्स हैं, दिस इज रीड राइट एग्जीक्यूट ऑफ यूजर ओनर. ओके, तो जो यूजर की परमिशंस है वो नेक्स्ट थ्री लाइंस इनमें लिखी है. सिमिलरली उसके नेक्स्ट थ्री लाइंस जो है दैट इज रीड राइट एग्जीक्यूट ऑफ ग्रुप ओनर, ठीक है. एंड सिमिलरली लास्ट थ्री लाइंस जो है दैट इज रीड राइट एग्जीक्यूट ऑफ अदर यूजर्स. ओके, सो ये तीन हमारे बेसिकली ओनर्स के लिए डिफरेंट परमिशन पैटर्न्स हैं, ठीक है. नाउ सपोज यू हैव टू चेंज दीज पैटर्न्स एंड उसके लिए हमारे पास होता है chmod कमांड. ओके, chmod कमांड, chmod कमांड. अब इसका थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्शन एक बार स्लाइड्स में देख लेते हैं.
सो सी एच मॉड के दो दो यूजेस होते हैं, दो बेसिकली यूज केस के तरीके होते हैं। सो द फर्स्ट वन इज द एब्सोल्यूट यूज ऑफ सी एच मॉड कमांड। इसमें क्या होता है, वी हैव एसोसिएटेड नंबर्स विद डिफरेंट परमिशंस। सो सपोज अगर मैं किसी पर्टिकुलर ओनर को, जैसे कि यूजर या अदर्स को नंबर 0 दे दूंगा सी एच मॉड के थ्रू, तो उसकी सारी परमिशंस चेंज टू नो परमिशन हो जाएगी, तो उसके पास कोई परमिशन नहीं रहेगी। एंड सपोज आई विल प्रोवाइड 1, तो उससे उसके पास एग्जीक्यूट परमिशन आ जाएगी। ऐसे ही 2 मीन्स राइट, 3 मीन्स एग्जीक्यूट प्लस राइट, 4 मीन्स रीड, 5 means read plus execute, 6 means read plus write, and 7 means all permissions. By all permissions we mean read plus write plus execute. तो एक बार देखते हैं अब इसको यूज केस कैसे है, इसको लिखना कैसे है। फर्स्ट वी नीड टू राइट सी एच मॉड, देन हमें फर्स्ट नंबर हमारा होगा हमारे यूजर ओनर के लिए। तो सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं सबको सारी सारी परमिशंस दे दूँ, ऑल परमिशंस, सो आई प्रोवाइड 7। अब नेक्स्ट नंबर मेरा होगा मेरा ग्रुप ओनर के लिए, सो इफ आई प्रोवाइड 7 अगेन, एंड नेक्स्ट लास्ट मेरा होगा हमारे अदर यूजर्स के लिए। तो 7 7 7 मीन्स ऑल परमिशंस टू यूजर, ऑल परमिशंस टू ग्रुप एंड ऑल परमिशंस टू अदर यूजर। एंड इसके बाद मैं फाइल नेम प्रोवाइड कर दूं, सो एग्जीक्यूट होगा। अब अगर मैं लॉन्ग लिस्ट करता हूं, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस फाइल में उसे तीनों ओनर्स को तीनों टाइप की परमिशंस मिल चुकी है, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट। अब इसका भी मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ, एनोटेशंस क्या है। तो रीड राइट एग्जीक्यूट में क्या होता है, दिस एक्स मीन्स एग्जीक्यूट, डब्ल्यू मीन्स राइट एंड आर मीन्स रीड। ठीक है, ये हमारे तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमिशंस हो गए। अब सिमिलरली एक और ट्राई कर लेते हैं कि सपोज मैं सब में से सारी परमिशंस ले लेनी है। सो इफ आई डू 0 0 0 ऑक फाइल, एंड अगेन मैं लॉन्ग लिस्ट करके दिखा देता हूँ, यू कैन सी सारी परमिशंस वैनिश हो गई हैं, बिकॉज हमने सब सब ओनर्स में से सारी परमिशंस रिमूव कर दी हैं। ओके, सो एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज वी ट्राई अ रैंडम नंबर, लेट्स से 2 4 6 एंड डू ऑक फाइल, एंड नाउ लेट्स डू लॉन्ग लिस्ट। तो आप देख सकते हो हमने 2 दिया था हमारे फर्स्ट यूजर को, एंड उसके बाद सिर्फ राइट परमिशन आई है। तो लेट्स गो टू अ टेबल। सो 2 शुड बी राइट, यू कैन क्लियरली सी 2 इज राइट परमिशन। ठीक है, सिमिलरली 4 इज रीड। तो हमने नेक्स्ट जो दिया था 4 दिया था, तो हमारे ग्रुप यूजर्स के पास रीड होनी चाहिए सिर्फ, यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे सिर्फ रीड परमिशन है इसके बाद। एंड 6, जब हमने 6 दिया हमारे अदर ओनर्स को, सो यू कैन सी उसमें रीड एंड राइट आ रहा है, तो 6 शुड बी रीड प्लस राइट, एंड क्लियरली 6 इज रीड प्लस राइट। सो अगर आपको ये छोटा सा एक टेबल 0 to 7 एनोटेशंस का याद हो जाए, यू कैन चेंज परमिशंस ऑफ एनी फाइल, एंड अपने अकॉर्डिंगली आप कुछ भी इसमें चेंजेस कर सकते हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट वे ऑफ यूजिंग दिस फाइल, using this command. So the second way is the symbolic mode. अब symbolic mode क्या होता है, हमारा U होता है यूजर के लिए, G होता है ग्रुप के लिए, O होता है अदर के लिए, एंड A stands for all. So इसका मतलब क्या है कि सपोज अब मैं इसी में आपको चेंजेस करके दिखाता हूँ। पहले तो हम इसकी परमिशंस देख लेते हैं कि सपोज आपने देखा कि ग्रुप के पास राइट परमिशन नहीं है, और मुझे ग्रुप के पास राइट परमिशंस ऐड करनी है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट सी एच मॉड, G stands for group, plus stands for adding any permission, and now we have to write the permission symbol. So W symbol is for write. So what, and now I'll write the file name. तो अब ये क्या करेगा, ग्रुप ओनर्स को राइट परमिशंस प्रोवाइड कर देगा। तो अब अगर मैं लॉन्ग लिस्ट करूं, you can see यहाँ पे W add हो गया, this means the right permissions have been added to the awk file and to the group owners। ठीक है, similarly अगर मुझे कोई permissions ले लेनी है, मुझे discard करनी है, तो I just have to do a minus। तो अगर ग्रुप में जो मैंने अभी right permissions provide करी है, मैं उसे subtract करना चाहता हूँ, यानी remove करना चाहता हूँ, I'll just write a minus sign over here, and you can now see वो write permissions जो आई थी that has been removed successfully। So this is how chmod can be used. Now suppose this is just addition or deletion, suppose you want to omit it, अपनी कोई permissions देनी है, so what you have to do is you have to do equal to। तो अब क्या होगा, previous read हट जाएगा, पहले उसका सारा हट जाएगा, और सिर्फ जो permissions हम provide कर रहे हैं वही होगा। So if you'll do this, you can see अब सिर्फ write रह गया है।
सो इक्वल टू का यूज क्या है? इक्वल टू बेसिकली पहले प्रीवियस परमिशंस को डिस्कार्ड कर देता है, एंड जो परमिशंस हम कमांड के थ्रू प्रोवाइड करते हैं सिर्फ वही हमें विजिबल होते हैं, वही अप्लाई होते हैं. So this is how chmod can be used in two different ways, the symbolic way and the absolute way. And इसी तरह हम फाइल परमिशंस, फाइल ओनरशिप्स, इन सबको अंडरस्टैंड करते हैं. तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर थी. And so that's all with this video. Stay tuned to add more festoons into your knowledge garland. Till then, keep subscribing.